حسن پور گاؤں میں عباس اپنی پتنی نفیسہ اور بیٹیوں زینب اور خدیجہ کے ساتھ رہتا تھا۔ عباس اپنی بیٹی زینب کو پڑھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ زینب کو پڑھانے کے لیے اپنی زمین بیچنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کی بیوی نفیسہ زینب کو اور آگے پڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دن عباس اپنی بیوی سے کہتا ہے، نفیسہ، زینب کو آگے کی پڑھائی کرنے کے لیے شہر کے بڑے کالج میں داخلہ لینا ہوگا۔ میں نے حساب جوڑا تھا، 5 لاکھ روپے کا خرچہ آئے گا۔ زمین بیچنی پڑے گی۔ 5 لاکھ روپے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ زمین بیچ دو گے تو ہم کھائیں گے کیا؟ اور زینب کی شادی کا کیا ہوگا؟ آج کل بنا جہیز کے کوئی رشتہ نہیں کرتا۔ گاؤں والے تانے ماریں گے کہ نفیسہ کی بیٹی خالی ہاتھ سسرال چلی گئی اور نفیسہ نے اسے کچھ نہیں دیا۔ اگر تم زینب کی پڑھائی میں سب روپے خرچ کر دو گے تو خدیجہ کا کیا ہوگا؟ نفیسہ، تو بیکار پریشان ہو رہی ہے۔ زینب شکشکا بن جائے گی تو اس کی شادی کی فکر خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اب چاہے مجھے قرض لینا پڑے یا زمین بیچنی پڑے، میں زینب کے سپنوں کو ضرور پورا کروں گا۔ سپنے سپنے، بس یہی سنتی ہوں۔ قرض کا بوجھ ہمیں کچل دے گا۔ خدیجہ چھوٹی ہے، مگر 2-4 سال میں اس کی شادی کی بھی بات آ جائے گی، تب ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ گاؤں میں لوگ بس جہیز اور دھوم دھام دیکھتے ہیں، لیکن تمہاری ضد ہمیں برباد کر دے گی۔ تو اب میں کیا کروں نفیسہ؟ تو ہی راستہ بتا۔ جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلاؤ۔ زیادہ دکھاوا اور ضد انسان کو ڈبا دیتا ہے۔ میں دن رات یہی سوچتی ہوں کہ ہمارا گھر کیسے چلے گا۔ تیری یہ باتیں مجھے مار ڈالیں گی۔ میں دن بھر پسینہ بہاتا ہوں، لکڑی کاٹتا ہوں، مجھے گھر میں سکون چاہیے، اور تو بس ٹوکتی ہے۔ خدا سے ڈر، میں جو کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ کیا کہا آپ نے؟ میری بات آپ کو مار ڈالے گی؟ یہ جینے مرنے کی بات کہاں سے لے آئے؟ میں گھر کی فکر کر رہی ہوں اور تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، جیسے میں تمہاری دشمن ہوں اور تمہیں مارنا چاہتی ہوں۔ تو سمجھ لے، میرے مرنے کا وقت نزدیک ہے۔ تو یہی چاہتی ہے کہ میں نہ رہوں، تو تجھے آزادی مل جائے گی اور پھر اپنی منمانی کرتی پھرے گی، جو جی میں آئے گا وہ کرے گی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کب کہا کہ اگر آپ مر جاؤ گے تو مجھے آزادی مل جائے گی؟ آپ مجھے غلط کیوں سمجھتے ہو؟ میں نے کیا گناہ کیا ہے جو آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ تو مجھے محنت کرنے دے، میں کماتا ہوں، جیسے چاہوں خرچ کروں، تجھے بیچ میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تھک گیا ہوں تیری ان باتوں سے۔ تو آپ اپنا گھر سنبھالیے، میں تو جا رہی ہوں۔ اس گھر میں میری کوئی قدر نہیں۔ تمہارا گھر تمہیں مبارک۔ کیا سمجھتی ہے تیرے بنا یہ گھر نہیں چلے گا؟ میں اکیلے ایسے 10 گھر سنبھال سکتا ہوں، تجھے لگتا ہے میں بیکار ہوں؟ ہاں تو جا رہی ہوں میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اپنے بچوں کو مارو یا جلاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میکے کا گھمنڈ ہے اور کیا؟ جا دیکھتا ہوں تجھے وہاں کون پوچھتا ہے۔ مائکے والے میرے بھاگی کے ساتھ نہیں۔ میں اتنی نیچ نہیں کہ ان کی روٹیوں پر پلوں۔ میں اپنے بل پر جی لوں گی۔ خدا میرا سہارا ہے۔ تو پھر کہاں جا رہی ہے؟ بتا تو۔ آپ پوچھنے والے کون ہوتے ہو؟ میں کہیں بھی چلی جاؤں مگر اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ جہاں میری بات کا کوئی مول نہیں، وہاں میرا رہنا بیکار ہے۔ اپنی امی اور بابا کی چیخ پکار سن کر زینب ان کے پاس آئی اور بولی، زینب، تیری امی چاہتی ہے کہ میں اس کا غلام بن کر رہوں، جو یہ کہے وہ میں کروں۔ مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتی، ہر بات پر ٹوکتی ہے۔ زینب، میں اب اس گھر میں اور نہیں رہ سکتی۔ تیرے ابو مجھے دشمن سمجھتے ہیں۔ امی ابو بس بھی کرو، تمہیں جھگڑنے کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے۔ دن رات بس یہی تماشا۔ تمہاری آواز باہر تک جا رہی ہے، محلے والے سن رہے ہیں۔ عباس غصے میں اس کمرے سے چلا جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے۔ انسان دن بھر محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، گھر میں سکون چاہتا ہے، یہاں تو جلی کٹی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ میری موت کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ بس اب میں چلا جاؤں گا، اس کا سارا گھمنڈ دھول میں مل جائے گا۔ غصے اور دکھ میں عباس نے خودکشی کر لی۔ اس کی وفات ہو گئی۔
गांव में मातम छा गया। हाय हाय, मैंने उन्हें इतने सख्त लहजे में ना कहे होते तो वो ऐसा ना करते। मैं ही अपने दुखों की जड़ हूँ। मेरी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही हैं। ज़ैनब, खदीजा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे अब्बू को खो दिया। अम्मी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो होना था वो तो हो गया। अब इस तरह रोने से काम नहीं चलेगा। अब्बास की वफात के बाद नफीसा को ज़ैनब की शादी की चिंता सताने लगी। उसने गांव के मुखिया रहीस को बुलाया। रहीस भाई, वो तो अब रहे नहीं। तुम ही इस डूबती कश्ती को पार लगाओ। वो चाहते थे ज़ैनब की शादी किसी शरीफ घर में हो। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मेरे पास देने को कुछ नहीं सिवाय बेटी के। कैसे भी करके ज़ैनब की शादी करवा दो। नफीसा, अब्बास मेरा भाई था। उसकी वफात ने मुझे तोड़ दिया। मैं वादा करता हूँ ज़ैनब की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। तुम परेशान मत हो, खुदा सब ठीक करेगा। मैं ज़ैनब का रिश्ता यूनुस से करवाने की कोशिश करूंगा। मैं आज ही यूनुस की माँ से बात करूंगा। रहीस भाई, अगर ज़ैनब का रिश्ता यूनुस से हो जाए तो ज़ैनब का भविष्य बन जाएगा। लेकिन यूनुस की माँ इस शादी के लिए राजी नहीं होगी। वो बगैर जहेज के अपने बेटे यूनुस की शादी नहीं करेगी। फिक्र मत करो, मैं यूनुस की माँ को समझाऊंगा। यूनुस ज़ैनब से मोहब्बत करता है, वो अपनी माँ को मना लेगा। अगले दिन रहीस यूनुस की माँ हलीमा से बात करने के लिए उसके घर जाता है। हलीमा बहन, मैं यहाँ यूनुस के लिए ज़ैनब का रिश्ता लेकर आया हूँ। रहीम भाई, अब्बास के घर में क्या बचा है? ना दुकान है ना पैसा। ऐसे में हम यूनुस की शादी उस घर में कैसे कर सकते हैं? हम अपने यूनुस का रिश्ता अमीर घरों में करेंगे, जहाँ जहेज मोटी रकम में मिलेगी। हलीमा बहन, तुझे शर्म नहीं आती? ज़ैनब काबिल लड़की है, यूनुस उसे चाहता है। तू दहेज के लालच में अपने बेटे की खुशी कुर्बान कर रही है। पैसा दिल से ज्यादा कीमती है क्या? रहीस भाई, तुम हमें नसीहत मत दो। हम अपने बेटे का भला सोच रहे हैं। बिना जहेज के शादी कौन करता है? नफीसा से कह दो हमें उसका रिश्ता मंजूर नहीं। हलीमा, तू अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर रही है। ज़ैनब जैसी काबिल लड़की नसीब वालों को मिलती है। तेरा लालच तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अपनी समझदारी अपने पास रखो। हम यूनुस का रिश्ता शहर में करेंगे, जहाँ जहेज में जमीन नकदी मिलेगी। ज़ैनब को कोई और देख ले। रहीस निराश होकर लौट जाता है। उसके बाद नफीसा ने कई जगह ज़ैनब का रिश्ता देखा, मगर बिना जहेज के कोई शादी करने को तैयार ना हुआ। हार कर उसने ज़ैनब की शादी 50 साल के बेवा हनीफ से कर दी, जिसका राशिद नाम का एक बेटा था। अम्मी, अम्मी, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। वो आदमी 50 साल का है। मैं उसके साथ कैसे रहूंगी? बेटी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। हनीफ अच्छा आदमी है। तुझे उसके घर कोई कमी नहीं होगी। रानी की तरह राज करेगी। अम्मी, तूने मेरे सपनों को बेच दिया। मैं शादी को बोझ की तरह ढूंढूंगी। शायद मैं उस आदमी के साथ कभी खुश ना रह सकूं। ज़ैनब, मैं मजबूर हूँ। ये रिश्ता ठुकराया तो तेरी शादी करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी बगैर जहेज के शादी नहीं करता। बेटी, मैंने ये सब तेरे भले के लिए किया है। हनीफ तेरा बहुत ख्याल रखेगा। कुछ दिनों में ज़ैनब की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। अपनी सौतेली माँ को देखकर उसका बेटा राशिद बहुत गुस्सा होता है। इसलिए वो एक दिन अपने अब्बू से कहता है, अब्बू, आपको इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत थी? नई अम्मी हमें दिखावटी प्यार करती हैं। गांव वाले कहते हैं वो हमें भूखा रखती हैं। बेटा, ऐसा मत कहे।
ज़ैनब तुम्हारी माँ की तरह है, वो मेहनत करती है ताकि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। वो मुझे प्यार नहीं करती। हमारी असली माँ मुझे कितना चाहती थी, वो मेरे बगैर एक पल भी नहीं रहती थी। लेकिन जब से ये नई अम्मी आई हैं, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अब्बू, आपने मुझे धोखा दिया। राशिद, तू अभी बच्चा है, अभी तुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। ज़ैनब तुम्हें अपने बच्चे की तरह चाहती हैं, हर वक्त तुम्हारी देखभाल करती हैं, फिर भी तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो बेटा? राशिद अपने अब्बू की बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। ओह, ये लड़का पता नहीं इसे ये बातें कौन सिखाता है। लगता है ये लड़का हाथ से निकल गया है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ज़ैनब के पड़ोस में सलमा नाम की एक महिला रहती थी। ज़ैनब की उससे अच्छी मित्रता हो जाती है। ज़ैनब को जब भी अपने घर के काम से समय मिलता था तो वो सलमा के घर चली जाती थी। एक दिन सलमा ज़ैनब से कहती है, ज़ैनब, तेरा रिश्ता यूनुस से क्यों टूटा था? आखिर क्या बात थी जिस वजह से उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया था? यूनुस की अम्मी ने जहेज की वजह से रिश्ता करने से मना कर दिया था। हाय, ये तो बहुत गलत हुआ। यूनुस ने कुछ नहीं कहा, वो तो पढ़ा लिखा है, उसे अपनी माँ को समझाना चाहिए था। वो अपनी माँ के सामने मजबूर था। उसने कहा कि वो मुझसे इश्क करता है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानी। बहन, अब मैं सब कुछ भूल गई हूँ। हलीमा नीच औरत है, यूनुस भी कम दोषी नहीं। उसने अपनी मोहब्बत की कदर नहीं की। सलमा, अब ये सब बात छोड़। मेरे लिए मेरे बच्चे और मेरा काम जरूरी है। अब मैं पिछली बातें याद नहीं करना चाहती। इतना कहकर ज़ैनब अपने घर चली जाती है। लेकिन ज़ैनब की बात सुनकर सलमा बहुत परेशान होती है। फिर वो अपने पति से कहती है, जफर, अगर रिश्ता पक्का हो लेकिन जहेज न मिलने पर लड़के की माँ रिश्ता तोड़ दे तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? ऐसा इंसान लालची और नीच है। दहेज के लिए किसी की जिंदगी बर्बाद करना बड़ा गुनाह है। और अगर लड़का पढ़ा लिखा हो फिर भी चुप रहे तो किसका गुनाह बड़ा? अगर लड़का माँ बाप के अधीन है तो उसके माँ बाप की गलती है। वैसे अगर लड़का खुद चुप रहा तो वो भी उतना ही गुनाहगार है। उसे अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना चाहिए था। मैं ज़ैनब यूनुस की बात कर रही हूँ। हलीमा ने जहेज के लिए रिश्ता तोड़ दिया था और यूनुस चुप रहा। उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। ये बहुत गलत हुआ। मैं यूनुस से बात करूंगा, उसे अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। अगले दिन जफर यूनुस के घर जाता है और उससे कहता है, यूनुस, तूने ज़ैनब के साथ धोखा किया। वो काबिल लड़की थी और तूने अपनी माँ के कहने में आकर उसका दिल तोड़ दिया। तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? जफर भाई, मैं मजबूर था। अम्मी ने दूसरा रिश्ता पक्का कर दिया था, मगर मुझे आज भी ज़ैनब से मोहब्बत है। मैं हर दिन पछताता हूँ कि मेरी उससे शादी नहीं हुई। अब पछताने से क्या होगा? जो होना है वो हो गया। बेचारी की शादी 50 साल के बूढ़े आदमी से हो गई है। अगर तुझे वाकई अपनी गलती का एहसास है तो तू ज़ैनब की छोटी बहन खदीजा की शादी में उन लोगों की मदद कर, अपनी गलती का कफ़ारा दे। मैं खदीजा की शादी में मदद करूंगा। मैं चाहता हूँ ज़ैनब मुझे माफ कर दे। मैंने उस मासूम के साथ अन्याय किया है। ज़ैनब की बात सुनकर यूनुस बहुत परेशान होता है। फिर वो अपनी माँ हलीमा से बात करता है। अम्मी, आपकी वजह से ज़ैनब की जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर आप मेरी शादी उससे करवा देती तो आज उसे 50 साल के बुजुर्ग आदमी से शादी ना करनी पड़ती। अब मैं चाहता हूँ कि सलीम की शादी ज़ैनब की छोटी बहन खदीजा से कर लो, वो भी बगैर दहेज के। अगर इस बार तुमने शादी करने से मना किया तो मैं हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा, तू पागल हो गया है क्या? सलीम मेरा बच्चा, मैंने उसे कितने प्यार से पाला है। मैं उसकी शादी सादा तरीके से नहीं कर सकती, और वो भी बिना जहेज के। ये मुमकिन नहीं है यूनुस। अम्मी, मैंने आपकी बात मानकर ज़ैनब को खो दिया है, अब और नहीं। तुम्हें सलीम से खदीजा की शादी करनी ही होगी।
वरना अच्छा नहीं होगा। यूनुस के बहुत समझाने पर हलीमा सलीम की शादी खदीजा से करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, उसके घर पैगाम भिजवा दो कि हम सलीम की शादी उनकी बेटी खदीजा से करना चाहते हैं, और वो भी बगैर जहेज के। यूनुस नफीसा को पैगाम भिजवाता है। पैगाम पाकर नफीसा बहुत हैरान होती है और सोचने लगती है, जिन लोगों ने जहेज की वजह से किया हुआ रिश्ता तोड़ दिया, अब वो बगैर जहेज की शादी क्यों करना चाहते हैं। खैर, जो भी है अच्छा ही है। एक दिन यूनुस गुप्त रूप से 50,000 रुपए एक लिफाफे में बंद करके उस पर ज़ैनब का नाम लिखकर नफीसा को भेज देता है। नफीसा 50,000 रुपए देखकर बहुत हैरान होती है और सोचने लगती है, आखिर ज़ैनब ने मुझे ये रुपए क्यों भिजवाए हैं? शायद खदीजा की शादी के लिए भिजवाए हों, लेकिन उसने ये सही नहीं किया। मेरी बेटी का धन नहीं लेना चाहिए। फिर नफीसा ज़ैनब को बुलाती है और ज़ैनब से कहती है, ज़ैनब, तूने ये 50,000 रुपए क्यों भेजे थे? मैंने तो तुझसे रुपए नहीं मांगे थे, फिर तूने रुपए क्यों भेजे मेरी बच्ची? बेटी का पैसा खाने की मेरी नियत नहीं। अम्मी, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने कब 50,000 रुपए भेजे? मैंने तो कोई पैसे नहीं भेजे। ये कब की बात है? खदीजा की शादी पक्की होने के 4 दिन बाद एक आदमी लिफाफा देकर गया था जिस पर तेरा नाम लिखा था। मैंने सोचा तूने भेजा है। अम्मी, मेरे पास कहाँ से आएंगे इतने रुपए? हनीफ की कमाई से बस गुजारा होता है। तो ये रुपए किसने भेजे? कहीं तेरे किसी सगे संबंधी ने तो नहीं भेजे? मेरा तो कोई सगा संबंधी नहीं है जो इतनी मोटी रकम दे सके। हमें पता लगाना होगा आखिर ये रुपए किसने भेजे हैं। खदीजा की शादी का दिन नजदीक आ गया। ज़ैनब ने सलमा को भी अपनी बहन की शादी में बुला लिया। एक दिन ज़ैनब सलमा से पूछने लगी, सलमा, किसी ने खदीजा की शादी के लिए खुफिया तरीके से 50,000 रुपए भेजे थे। उस लिफाफे पर मेरा नाम लिखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पैसे किसने भेजे हैं। कहीं तूने तो वो पैसे नहीं भेजे? ज़ैनब, मैंने तुझसे एक बात छुपाई है। वो पैसे मैंने नहीं बल्कि यूनुस ने भेजे थे। मैंने ये सच इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तो रुपए लेने से इनकार ना कर दे। सलमा, तूने ये क्या किया? तू मेरी सखी है, मेरी बहन जैसी है, और तूने इतना बड़ा सच मुझसे छिपाया। ज़ैनब, मुझसे गलती हुई। मैं नहीं चाहती थी कि तू और दुखी हो। यूनुस को अपनी गलती का एहसास है। उसने खदीजा की मदद करके अपने गुनाह का कफारा देना चाहा है। मैंने सोचा अगर तुझे पता चला तो तेरा दिल और टूटेगा। कफारा? वो अपनी गलती का बोझ मेरे सिर पर डालना चाहता है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे सपनों को कुचला, और अब मेरे नाम से रुपए भेजकर क्या साबित करना चाहता है कि वो नेक बन गया है। सलमा, तूने मेरा भरोसा तोड़ा। मैं तुझ पर आंख मूंद कर यकीन करती थी। ज़ैनब, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरा दुख देखा है। तू दिन रात अपने बच्चों के लिए मेहनत करती है। यूनुस जब तुम्हें देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। यूनुस ने अपने भाई सलीम की शादी खदीजा से करवाकर तुझसे माफी मांगने की कोशिश की है। ज़ैनब, उसे माफ कर दे। अगर यूनुस को सच में अपनी गलती का एहसास है तो मैंने उसे माफ कर दिया। खदीजा की शादी हो गई। वो अपने ससुराल चली गई। सारे मेहमान भी अपने घर चले गए, लेकिन ज़ैनब अपनी माँ के पास ही रुक गई। हनीफ ने उसे बहुत बुलावे भेजे, लेकिन ज़ैनब अपने ससुराल नहीं गई। एक दिन सलमा ही उसके घर आई। ज़ैनब, हनीफ ने तुझे कितने बुलावे भेजे, लेकिन तू नहीं आई। तुझे ससुराल जाने से डर लगता है क्या? तू इतना क्यों बदल गई? पहले तू हंसती थी, अब तो चुप चुप रहती है। सलमा, वो खुद मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैं कोई सामान थोड़ी हूँ जो बुलावे पर चली जाऊं। मैंने उनके लिए सब कुछ छोड़ा, अपने सपने दफन किए, मगर वो मेरी कद्र नहीं करते।
ज़ैनब, गांव की औरतों ने उनकी इतनी बुराई की कि वो शर्मिंदगी में नहीं आए। मैंने कई बार कहा मगर उन्होंने इनकार कर दिया। हनीफ दुखी है, राशिद भी अब उनसे बदतमीजी करता है। वो लड़का तो है ही बदतमीज, मुझसे भी बहुत जबान लड़ाता है। गांव की औरतें उसे भड़काती हैं, कहती हैं तेरे अब्बू को इस उम्र में शादी की क्या जरूरत थी। ज़ैनब, अब तू ही उसे सुधार सकती है। जो बच्चा अपने बाप से नहीं डरता, वो अपनी सौतेली माँ से क्या डरेगा। मैं क्या कर सकती हूँ सलमा, मैंने तो उसे अपने बेटे की तरह प्यार दिया, मगर वो मुझे पराया समझता है। ज़ैनब, तू हार मत मान, तेरा प्यार एक दिन राशिद का दिल जीत लेगा। वो अभी बच्चा है, ना समझ है, जैसे उसे दूसरे सिखाते हैं वो ऐसा ही सीख जाता है। सलमा, मैं थक गई हूँ, अपने सपने छोड़ अब्बू की यादें दबाई, हनीफ का घर संभाला, मगर हर कदम पर मुझे ताने मिलते हैं। कभी गांव वाले, कभी राशिद। राशिद बच्चा है लेकिन बात बड़ों जैसा करता है। ज़ैनब, तुझे हिम्मत से काम लेना होगा, एक ना एक दिन तो तुझे ससुराल जाना पड़ेगा, यहाँ रहने से गुजारा नहीं होगा। सलमा की बात मानकर ज़ैनब अपने ससुराल चली गई। जब ज़ैनब हनीफ को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। हनीफ, ये तुमने क्या हाल बना लिया है अपना? मैंने सुना है राशिद तुम्हें उल्टा जवाब देता है, उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला, मगर वो मुझे भी अपना दुश्मन समझता है। ज़ैनब, मुझे लगता है कोई इसके कान भरता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो अचानक इतना बदल कैसे गया। गांव की औरतें उसे भड़काती हैं, कहती हैं मैं उसे भूखा रखती हूँ, दिखावटी प्यार करती हूँ। तुमने कभी उन औरतों को टोका क्यों नहीं? तुम चुप क्यों रहते हो? ज़ैनब, मैंने गांव की औरतों को समझाने की कोशिश की थी, मगर गांव वाले सुनते कहाँ हैं। राशिद अभी बच्चा है, वो समझ जाएगा। बच्चा? वो तुमसे बदतमीजी करता है और तुम उसे बच्चा कहते हो? जफर भाई से कहो राशिद को समझाए, शायद वो उनकी बात मान ले। ठीक है ज़ैनब, मैं जफर से बात करूंगा, तू फिक्र मत कर। एक दिन ज़ैनब बाजार से आ रही होती है। रास्ते में उसे यूनुस मिल जाता है। वो ज़ैनब से कहता है, रुक ज़ैनब, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तुमसे मोहब्बत करता था, मगर अम्मी के दबाव में चुप रहा। मैं हर दिन पछताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम फिर से जिंदगी शुरू करें। यूनुस, तूने मेरा दिल तोड़ा, अब मेरे घर की इज्जत पर धब्बा लगाना चाहते हो? मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, तो ये सब कैसे कह सकता है? तुझे जरा भी शर्म नहीं? ज़ैनब, मुझे माफ कर दे, मैंने गलती की। मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने खदीजा की मदद की ताकि तू मुझे माफ कर दे। माफी? किस बात की माफी यूनुस? चला जा यहाँ से, वरना कोई देख लेगा। ज़ैनब, मैं तुझसे बिना माफी मांगे नहीं जाऊंगा। मैं हर दिन अपने गुनाहों के बोझ तले दबा रहता हूँ। तू मुझ पर रहम कर। यूनुस, मैं तुझे माफ कर सकती हूँ, मगर तेरी बातें मेरे जख्मों को हरा करती हैं। तू अपनी जिंदगी जी और मुझे अपनी जिंदगी जीने दे। इतना कहकर ज़ैनब वहाँ से चली जाती है। अब ज़ैनब घर पहुँचती है तो सलमा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। ज़ैनब सलमा को यूनुस की सारी बात बताती है। ज़ैनब की बात सुनकर सलमा उससे कहती है, तू परेशान मत हो ज़ैनब, मैं यूनुस को समझाऊंगी। फिर सलमा यूनुस के घर जाती है और यूनुस से कहती है, यूनुस, तूने ज़ैनब से क्या कहा? उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अब उसकी इज्जत पर धब्बा लगाना चाहता है? तुझे जरा भी शर्म नहीं? सलमा, मैंने गलती की। मैं ज़ैनब से मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता था कि वो मेरी हो जाए। तू नीच है, तूने उसका दिल तोड़ा और अब उसकी जिंदगी उजाड़ना चाहता है। आइंदा कभी उससे मिलने की कोशिश मत करना। सलमा की बात सुनकर यूनुस शर्मिंदगी में खुदकुशी कर लेता है।
پورے گاؤں میں بات پھیل جاتی ہے کہ یونس نے خودکشی کر لی ہے۔ جب یہ خبر زینب کو پتہ چلتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے۔ اتنے میں سلمہ بھی آ جاتی ہے۔ میں نے تمہیں یونس کی بات غلط بتائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یونس ایسا کر لے گا۔ اگر میں چپ رہتی تو یہ نوبت کبھی نہیں آتی۔ میری وجہ سے ایک انسان کی جان چلی گئی۔ زینب، اس میں تیری کوئی غلطی نہیں ہے۔ یونس اپنے گناہ کا بوجھ نہیں سہ سکا۔ تو نے جو کیا صحیح کیا۔ سلمہ، اگر میں نے کچھ نہ کہا ہوتا تو وہ زندہ ہوتا۔ میرے دل پر یہ بوجھ زندگی بھر رہے گا۔